This is your host Saleem bin Mohammad Rafi, and here is my YouTube channel, Zamir Universal. Today is an appropriate day to talk about the political stunt, the political use of religion, and India is the typical example. And when you look at the celebrations we made, and the whole population of a religion being cheated and deceived and exploited for political reasons, you only have to go back a couple of centuries to see how the three people, for the sake of winning election and beating the opponent, they conspired, and they, in the middle of the night, took a small statue of Ram and placed it under the tomb of a mosque where for 500 years the prayer to the Creator, Almighty God, have been offered. The whole world was shaken when the Babri Mosque was destroyed, and it was easy, and you will find on the YouTube full with accusations, wrong accusations, lies, utter lies against Aurangzeb, against other Mughal emperors, Nawabs, and even some Congress Hindu leaders. But in fact, even who exploited this was a nexus between some Pandits, some Bhagats, and the politician of that time. They needed the help, and how they got the help from that, and how their friendship from playing tennis and going to school together, and how did it work, and all the way up to it, then how it changed hands and reached the hand of the most cruel, the most, I think, the killer of, and people who burned Muslims alive in Gujarat when he was a CM. A new party, a new terrorist group, RSS, it was the evolution, and the base was religion. There was no such thing as Hindu or Muslim. India was for everybody. And if you go after this claim that India or Hindustan is for Hindus, then you have to go way back 6,000 or maybe 10,000 years, and you could then hand over India to the Buddhists, or you go back and see that the Hindus didn't even exist in that part of the world, and how this Hindu religion with the multiple gods, it evolved. But similarly, when you go back to the creation of Prophet Adam, and the God Almighty sent his message through his messenger, and all the way passed it on to first Moses, before him Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Christ, and peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was worshipped. They were not a prophet, but they worshipped the Creator, the God Almighty. How these bhagats, how these sadhus, how they in the middle of the night, there's an excellent story, an excellent documentary, parts of it which I will show you in this, to prove that it's nothing more than a political stunt. In all these celebrations, you can see the power of the politicians, how all over the world you can see fireworks, you can see these small statues of Ram being sold, and on the name of that, you will see that agarbatis, with a
nice fragrant smoke, which is usually, I think, they are burnt at such occasions. And you see the most ugly faces of the people who implanted those and who conspired this to just defeat the opponent. And in this small pieces which of history, along with evidence, I'll go back to the 16th century and then reconstruct this. And this documentary from which I have learned something, and I am going to quote, and for the sake of all the population, not only Muslims. I'm not just going to give you a Muslim or Islamic view. I'm giving you a human view that this is nonsense, and these ugly faces will be long remembered who demolished Babri Mosque. That will, I think, you will also see some black faces of the Supreme Court judges who were bought and they gave decision. And go back on even the English, I think, governors and English commanders and even some Nawabs who sold this, knowing fully well there's no such thing. There was only a small chabutra, a small piece, very small, tiny, about feet by 2 feet, where they call it a Ram Chabutra. Ram Chabutra was something where some Hindus went there and they prayed to their god. They call their god Ram. So they worship this, just as you see in New Delhi, and when you go to Ajmer Sharif, along with Muslims, you will find many Hindus, devotees who go there with buckets full of rose petals, and they go and they say their own prayers. And because they revere those, although they are Muslims in the graves, and they know that they are pious people, similarly, both Hindus and Muslims, they used to pray there. The Hindus had a very small piece of which is called a chabutra, where they used to pray. And that's all is the history there. In fact, there was outside a little mount on which, there was some activity, religious activity, and there was something that a Bhagat was sleeping there and he dreamt and he saw the face of in his dream, Ram, and telling him, how are you? And he said, well, since the Ram came in my dream in this mountain, Ram, some sort of, for the sake of that, a monument or a mandar should be constructed on, and that had nothing to do with Babri Mosque. Babri Mosque was actually destroyed to divide the Hindu Muslims, to divide the Hindu Muslim vote, to bury and kill the secularism, for which there was a political dislike, and that became the cause of the assassination of Mahatma Gandhi. And then I think Nehru was in as a prime minister for only a couple of months when he learned about this conspiracy, that this is how the division between the Muslims and Hindus to defeat Congress was being cooked up, and with the help of these Bhagats and the clergy. And there is an old story about this. And you go back to Tsars, go back to, I think, Romans, go back to you go back even to the Jewish line, that even the Roman Empire, before they crucified Christ, it is always the clergy which joins hands with the rulers, and they make this conspiracy to run down the other belief, and so that they can dominate, they can control. So it is, in fact, a very dirty political trick which goes on up until today. You can even see the present genocide which is occurring in Canada, and you see the genocide which occurred in Kashmir. It's continuously occurring right now. And not only in Kashmir, you can see that in Nagaland, you can see that in 7, the chicken neck states which by force the Indians have occupied, Hyderabad, Junagadh, all Muslim states which have nothing to do with India. And just they happened, they were landlocked, and so they strangulated them and forced them to stay in there. So you can see that India is nothing
but a union of very small, tiny enclaves who kept on fighting. There are hundreds and thousands of films, there are hundreds and thousands of plays, there are hundreds and thousands of books written, and even you see there are hundreds and thousands of different gods in different areas and different those small states. They don't even have one person they worship, from Hanuman to Ram to Bhagwan to Kalima, or you go on and on and on and on, and every statue you will see, it will be different, from a monkey to onwards to snake. There will be all sorts of, even sun. So from there on you see the diversity here. It's no such thing as Ram. Ram is just one we know as the creator, and that is God Almighty. And they say that Uparwala. This you will learn from every Hindu, that they Uparwala. So they know that it's not enclosed in the walls. They pretty well know that that lives up and created all the universe, completed 7 heavens, and the God Almighty lives there, from where He sends His messengers. But till the day of judgment, the diversity, different faiths are going to remain here. So are the believers of different prophets, like Christ, Christians like Moses, Jews like Muhammad, peace be upon him, Muslims. So this is going to go on. मंदिर साल 1799 में बनकर तैयार हो गया। इस तरह हनुमानगढ़ी रामानंदी संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों में से एक निर्वाड़ी अखाड़े की मुख्य गद्दी बन जाता है। तब से लेकर अगले कुछ वर्षों तक ये ऐसे ही चलता है, लेकिन सवाल यह है कि साल 1855 में ऐसा क्या होता है कि हनुमानगढ़ी का यह मंदिर हिंदू मुस्लिम विवाद का कारण बन जाता है। दरअसल उन दिनों अवध में एक मौलाना थे, गुलाम अली शाह। मौलाना शाह एक चरमपंथी मुस्लिम थे। हनुमानगढ़ी मंदिर बनने से पहले हनुमान टीले मंदिर के अलावा एक फकीर की मजार भी हुआ करती थी। अब मौलाना शाह ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि जिस पहाड़ी पर हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है, वहां किसी दौर में एक मस्जिद हुआ करती थी। मौलाना शाह ने अपने अनुयायियों से मस्जिद से बैरागियों का कब्जा छुड़वाने का आह्वान कर दिया। तारीख तय हुई 28 जुलाई 1855। अयोध्या में मौजूद अंग्रेज अधिकारी कैप्टन एपी अपनी 150 सैनिकों की टुकड़ी के साथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने अवध में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मेजर जनरल ऑट्रम को इस घटना का ब्यौरा भेजा। इस ब्यौरे के मुताबिक मौलाना शाह गुलाम अली के नेतृत्व में सुबह से लोग मस्जिद पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। करीब 400 और 500 के बीच लोग रहे होंगे। उन्होंने दोपहर में जौहर की नमाज के बाद करीब 1 बजे 70 फीट ऊंचे हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी पर बैरागियों, नागा साधुओं और स्थानीय श्रद्धालुओं की करीब 8000 की भीड़ मुस्लिम हमलावरों का इंतजार कर रही थी। लेकिन बैरागी साधुओं को देखकर शाह गुलाम अली के लोगों के पांव जल्दी ही उखड़ जाते हैं। उनमें से कई जान बचाने के लिए मस्जिद की तरफ भी भागते हैं। बैरागियों ने हमलावरों का पीछा भी किया। माना जाता है इस घटना में 70 से 80 मुस्लिम मारे गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि होने का कोई दावा हनुमानगढ़ी की तरफ से नहीं किया गया था। पहली बार यह दावा सामने आया 3 साल के बाद, यानी 1858 में। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं साल 1857 की क्रांति भी थी या गदर भी थी, जब 1855 की घटना में अंग्रेज फौज ने भी हनुमानगढ़ी के बैरागियों के प्रति नरम रवैया बरता, तो बैरागियों ने अंग्रेजों का एहसान याद रखा। इसलिए जब 2 साल बाद देश के अलग अलग हिस्सों में 1857 की क्रांति बुलंद हुई, तो अवध रियासत के कई बड़े जागीरदारों ने अवध के मुस्लिम नवाब के बजाय उसको साथ देने के अंग्रेजों का साथ देना ठीक समझा। हनुमानगढ़ी के महंत ने भी अंग्रेजों को सहायता देने का प्रस्ताव रखा। आगे अंग्रेजों ने भी इस प्रस्ताव को याद रखा और अयोध्या की ज्यादातर जमीन जो थी, वो जो नजूल थी, मतलब कि सरकारी जमीन थी, अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद परिसर के एक कोने की जमीन रामानंदी संप्रदाय को सौंप दी। यहाँ एक चबूतरा बनाया गया जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना गया। तीनों के मिलने और इस योजना के बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1949 में घटने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 से। केरल के रहने वाले के नैयर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे।
1940 में उनकी पोस्टिंग हुई, तब के यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। इसी गोंडा जिले में एक रियासत थी बलरामपुर और यहाँ के राजा थे पतेश्वरी प्रसाद सिंह। महाराजा पतेश्वरी प्रसाद सिंह अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़े हुए थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती के नैयर से होती है। दोनों के बीच दोस्ती की वजह बनती है टेनिस। दोनों टेनिस के शौकीन थे, खिलाड़ी थे। महाराजा पतेश्वरी प्रसाद सिंह की गोरखपीठ में भी श्रद्धा थी। इत्तेफाक से गोरखपीठ के महंत दिग्विजय नाथ भी टेनिस के शौकीन निकलते हैं। लंबे चौड़े कद के दिग्विजय नाथ कॉलेज के दौर से ही उस वक्त इस राम चबूतरा के बारे में कहा जाता था कि यहीं भगवान राम का जन्म स्थल है, यानी यहीं पर प्रभु राम का जन्म हुआ है। इस चबूतरे के रखरखाव की जिम्मेदारी निर्मोही अखाड़े को सौंप दी गई। अभी तक यहाँ बाबरी मस्जिद किसी भी सीन में नहीं थी। यहाँ तक कि कभी नहीं कहा गया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह थी जहाँ मंदिर हुआ करता था, ऐसा दावा कभी भी नहीं किया गया। तब राम चबूतरे को ही प्रभु राम का जन्मस्थल बताया जाता था। लेकिन आगे की कहानी को बताने से पहले मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार की वीडियो लाने में हमें मदद मिलती है। अब आगे की कहानी। नवंबर 1858 में मौलवी मोहम्मद असगर खलील ने फैजाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई कि बैरागी बाबरी मस्जिद में अवैध रूप से एक चबूतरा बना रहे हैं। आगे साल 1860, 1877, 1883 और 1884 में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस किस्म की शिकायतें दर्ज हुईं। इस पूरे मामले में पहले हिंदू पक्षकार थे बाबा रघुवर दास। बाबा रघुवर दास खुद को श्री राम जन्म स्थान का महंत कहते थे। उन्होंने साल 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अनुमति लेने के लिए अदालत में अर्जी डाली। जज पंडित हरिकिशन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। अपने आदेश में उन्होंने लिखा कि मंदिर बनवाने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हजारों की जानें जा सकती हैं। लेकिन बाबा रघुवर दास नहीं माने। रघुवर दास अब इस मामले को प्रोविंशियल कोर्ट में भी ले जाते हैं, लेकिन वहां भी फैसला हिंदू पक्ष में नहीं आता। आगे ये मामला अगली आधी सदी तक इसी तरह ठंडे बस्ते में रहता है। लेकिन साल 1934 आते आते शाहजहांपुर में हुई एक गौ हत्या के खिलाफ अयोध्या में दंगे भड़क जाते हैं। इस समय कुछ बैरागी साधुओं ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस हिस्से को अंग्रेजी सरकार को अपनी खर्च से दोबारा बनवाना पड़ा। लेकिन राम जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आता है साल 1949 में, जब 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात बाबा अबराम दास और निर्वाड़ी अखाड़े के कुछ साधुओं ने मिलकर रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के भीतर रख दिया और दावा किया कि स्वयं भगवान राम अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। अब राम चबूतरा और हनुमानगढ़ी वाला दावा पीछे चला जाता है और अब कहा जाने लगा कि राम का जन्म तो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे ही हुआ था, यानी असली मंदिर यहीं था। लेकिन सच्चाई गई जिसका नाम रखा गया सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस से अलग होने के बाद इन नेताओं ने प्रोविंशियल असेंबली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं में आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल थे। इन 13 सीटों पर जून 1948 में नए सिरे से चुनाव होने थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर फैजाबाद की सीट से मैदान में उतरते हैं। फैजाबाद यानी अयोध्या वाला क्षेत्र। इधर साल 1940 के यूनाइटेड प्रोविंस यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत चुकी थी और कांग्रेसी नेता गोविंद वल्लभ पंत दूसरी मर्तबा यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर चुने गए थे, यानी एक तरह से मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब गोविंद वल्लभ पंत ने अपनी कुर्सी के पायों को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया। इसलिए साल 1948 का फैजाबाद उपचुनाव गोविंद वल्लभ पंत के लिए एक सुनहरा मौका था। पंत ने कांग्रेस के बागी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ बिसात बिछानी शुरू कर दी। उनकी इस योजना में उन्हें सूबे के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का पूरा सहयोग मिला और टंडन की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की थी। वो कांग्रेस के भीतर मजबूत हो रहे दक्षिणपंथी धड़े यानी कि आज के आरएसएस, बीजेपी या जैसे कहें कि राइट विंग के उभरते हुए सितारे थे। अब दोनों ने योजना बनाई कि फैजाबाद उपचुनाव में नास्तिक समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक हिंदू सन्यासी को कांग्रेस की टिकट दिलाई जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान पहले से ही फैजाबाद उपचुनाव के लिए सिद्धेश्वरी प्रसाद की टिकट पर मोहर लगा चुकी थी। इसलिए गोविंद वल्लभ पंत और पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए जरूरी था कि सिद्धेश्वरी प्रसाद का टिकट कटवाया जाए और अंततः गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस की लीडरशिप को नरेंद्र देव के खिलाफ हिंदू छवि वाले बाबा राघव दास को उतारने के लिए मनाने में
कामयाब हो जाते हैं। बाबा राघवदास अयोध्या के पास के ही जिले देवरिया के रहने वाले थे और साल 1921 में महात्मा गांधी से मिलने के बाद गांधीवादी हो गए थे। चरखा चलाते थे, कई दफा जेल भी गए। उनके नाम पर आला कमान को मनाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। धीरेन्द्र के झा और कृष्णा झा अपनी किताब अयोध्या द डार्क नाइट में लिखते हैं कि बाबा राघवदास को टिकट दिया जाना एक चालाकी भरा पैंतरा था। इसके जरिए आने वाले चुनाव में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। यह निर्णय कांग्रेस की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। कांग्रेसी सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने सबसे पहले मंदिरों के महंतों और बैरागियों से मुलाकातें की ताकि राघवदास के समर्थन में माहौल बनाया जा सके। और देखते ही देखते पंत ने फैजाबाद उपचुनाव को एक सन्यासी बनाम एक नास्तिक की लड़ाई में तब्दील कर दिया। नेशनल हेराल्ड अखबार में इस चुनाव की कवरेज कुछ इस तरह से हुई। प्रीमियर पंत ने कहा कि मुस्लिम जमींदार और दूसरे निहित स्वार्थ वाले लोग कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट लोग हिंदुस्तानी जबान को भारत की आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं, जिसे नागरी और उर्दू दोनों में लिखा जाए, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही अपना समर्थन हिंदी को दिया हुआ है। हमने राजकाज में पहले से ही हिंदी का उपयोग शुरू कर दिया है। अब लोगों को तय करना है कि वे किस तरफ खड़े हैं। उस वक्त के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े नेता इंदु शेखर झा उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। दोनों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। अब रामदास 10 मिनट में पैदल चलते हुए राम चबूतरे तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वहां हनुमानगढ़ी के एक और बैरागी वृंदावन दास पहुंचते हैं। इनके हाथ में रामलला की छोटी सी मूर्ति थी। निर्मोही अखाड़े के अबराम दास ने इस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके सामने भीतरी पर्दे की एक दीवार बची थी। सारी उम्र अखाड़े में देह को मांझने वाले अबराम दास के लिए ये कोई मुश्किल भरा काम नहीं था। अबराम दास दीवार फांदकर मस्जिद के भीतर पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां पर रामलला की मूर्तियां रख दी। अगले दिन इस घटना ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस घटना के बारे में कहा जाने लगा कि स्वयं भगवान श्री रामलला का प्रकटोत्सव हुआ है। स्वयं भगवान अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। इस अफवाह के दम पर कुछ लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह है जहां राम प्रकट हुए। इससे पहले कभी भी बाबरी मस्जिद का जिक्र राम मंदिर जन्म स्थान के रूप में नहीं किया जाता था। न्यूज 18 समाचार को दिए बयान में राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष अच्युत शंकर शुक्ला बताते हैं कि 1949 में पौष शुक्ल की तृतीया को भगवान राम प्रकट हुए थे। आगे इस दिन को प्रकटोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस घटना के तत्काल बाद निर्मोही अखाड़े के अबराम दास, जिन्हें अभय राम दास भी कहा जाता था, उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर कर ली जाती है। अभय राम के साथ सिद्धेश्वर राव और शिवचरण दास समेत 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। तत्कालीन पुलिस अधिकारी राम दुबे ने FIR को इस तरह रजिस्टर किया। मैं सुबह 7 बजे जन्मभूमि पहुंचा। मुझे कांस्टेबल माता प्रसाद से पता चला कि करीब 50-60 लोग मस्जिद का ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए, जहां उन्होंने रामलला की मूर्तियों को स्थापित किया और गेरुआ रंग से दीवारों पर श्री राम लिख दिया। उस वक्त मौजूद कांस्टेबल हंसराज ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। हालांकि आंदोलन समर्थकों ने यह दावा किया कि रामलला खुद यहां प्रकट हुए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के नेता BL शर्मा कथित तौर पर दावा करते हैं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद के डोम में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, उस वक्त वे वहां पर मौजूद थे। BL प्रसाद कहते हैं कि सुबह करीब 3 बजे बाबरी मस्जिद के अंदर से लाइट आ रही थी और ये लाइट रामलला की मूर्ति से आ रही थी। ये वही BL शर्मा थे जो आगे चलकर दिल्ली से भाजपा की तरफ से 2 बार सांसद बनते हैं। बाबरी मस्जिद की मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रखने की घटना आगे जाकर संपूर्ण बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की साजिश का कारण बनती है। आम हिंदुओं में यह संदेश गया कि भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद की गुंबद के नीचे वाली जगह पर ही हुआ है, जबकि इस घटना से पहले राम चबूतरा को प्रभु राम का जन्म स्थान माना जाया करता था। साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना के बाद बैठी इंक्वायरी यानी द लिब्रेहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1948 की घटना को एक बड़ी साजिश का परिणाम बताया। द लिब्रेहन कमीशन रिपोर्ट ने आगे कहा कि रामलला की मूर्ति के प्रकट होने की घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम पड़ती है, जिसमें लोकल प्रशासन भी शामिल था। ये रिपोर्ट इस साजिश में मुख्य भूमिका निभाने के लिए खासकर गोंडा जिले के DM
के नैयर की तरफ इशारा करती है। इस घटना ने आम हिंदुओं की भावनाओं को और अधिक इस्तेमाल करने के लिए रास्ता खोल दिया। आज भी आम भोले वाले हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को लगता है कि राम बाबरी मस्जिद में ही प्रकट हुए थे, लेकिन असली कहानी कुछ और है। इस देश के लोग बड़े निर्दोष और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन्हें अपनी जान से अधिक भगवान प्यारे हैं, भगवान राम प्यारे हैं। भगवान की आड़ में सदियों से इन निर्दोष लोगों को ठगा गया और आज भी ठगा जा रहा है। एक पूरा देश ही इस बात में लग गया कि मंदिर यहाँ था, मस्जिद यहाँ थी, मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी, यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। इस देश को अपनी गरीबी से लड़ना था, अस्पतालों के लिए लड़ना था और शिक्षा के लिए लड़ना था। वो देश पिछले दशकों से मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं आ पा रहा है। पिछले 40 साल से भारत के लोग आराम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इस मानसिक थकान पर ही कुछ खास पार्टियों के लोग यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर